Okay, this is the ground and the balloon is going upward with a constant velocity 15 meter per second. Balloon is at a height 50 meter. तो suppose तुम्हारा जो balloon है वो यहाँ तक आ गया, यहाँ पे है balloon अभी, ठीक है, and this height is 50 meter and balloon is going upward with a speed 15 meter per second. Now it has dropped a stone. तो stone यहाँ पे इसने छोड़ दिया. So what will be the velocity of stone? Stone will get velocity in the upward direction with velocity 15 meter per second. Then it will go up and come down क्योंकि it is feeling gravity. So इसने पूछा है how long it will take to reach the ground. तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड वाला. This is point A, this is point B. Particle has come from A to B. Then what is the displacement? Minus h. Minus 50 because it has come down. And the initial velocity is 15. Positive because I have taken the upward direction as positive direction. And acceleration is negative. So half into 10 into t square. So it will become 5t square minus 15t minus 50 equal to 0. So it will become t square minus 3t minus 10 equal to 0. So the equation will come t minus 5 t plus 2 equal to 0. So we'll get value 5. 5 and minus 2. हाँ but minus 2 तो acceptable आंसर नहीं है ना. टाइम. Our answer will be 5. Yes sir. Sir. हाँ सर फिफ्थ वाले का st ग्राफ नहीं आया, कैसे करते वो नहीं समझा. स्पीड एंड टाइम ग्राफ. एक सेकंड. कौन सा टाइम ग्राफ नहीं है वाले का. तो st क्या है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम है वो st ग्राफ. हाँ, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड नहीं होता है. अच्छा डिस्प्लेसमेंट है क्या? हाँ सर फिर भी एक बार बताओ ना, मेरे को नहीं समझ नहीं आया मेरा. कौन सा नंबर बताओ. लेक्चर 5 ट्यूटोरियल 1. हाँ 1 का फिफ्थ वन. फिफ्थ. हाँ फिफ्थ का लास्ट पार्ट st मतलब डिस्प्लेसमेंट. या ओके ना, हम इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं ना. देखो फिफ्थ में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 भाई. बाकी लोग जिससे नहीं हुआ है यू कैन सी. So we are given a question that there is a graph and VT graph is a given. So VT graph is given. This is my VT graph. Time is 2, 4, 6, 8, 10. So I have made 2, 4, 6, 8, 10. Okay, this is time and this is velocity. Velocity, okay. From t equal to 0 to 2, it is increasing with a straight line. See. And the value is 10. After that, it is constant till t equal to 4. T equal to 4, this is constant. After that, it has come down and reached to 8. 8 पे कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया. Okay, it is decreasing. ठीक है, and the value is also minus 10. And now it is increasing and coming to 0. 10. 10 t equal to 10. This is given. Yes sir. So okay, you tell me, you are given the velocity time graph. Okay, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? apply acceleration. Okay, acceleration. So okay, first I will make the acceleration time graph. ठीक है, this is 2, 4, 6, 8, 10. This is acceleration. Slope. Let's check the slope between t equal to 0 to t equal to 2. 5. Straight line है? Straight line है ना? Slope will become 5. So t equal to 2 to t equal to ये हमारे पास में आ गया 5. Then t equal to 2 to t equal to 4. Velocity is constant. That means 0. Acceleration is 0. So see, this acceleration is 0. Then t equal to 4 to t equal to 8. Again, it is a straight line, but this is decreasing. So slope will come down to minus 5. So minus 5. 4 to 8. So 4 to 8. This is minus 5. And then again plus 5. 8 to 10. This is an
increasing, so this is +5 सर +5. सर इनको ज्वाइन नहीं करना है? नहीं, जो ज्वाइन करना है तो कर दो ये लो, तो ज्वाइन हम ऐसे कैसे करेंगे ये। अच्छा मतलब डॉटेड लाइन से ही करना है ना, वो वाले लाइन से नहीं कर सकते? हाँ मतलब इससे करना अच्छा रहता है। दैट इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, बिकॉज इस टाइम पे तुम ऐसा नहीं कह सकते ना कि एकदम से 0 आ गया। हाँ सर। तो हम ऐसा बना देते हैं। अब जो मतलब कि यहाँ तो इजी चीज है ना, हमारा जो अगला पार्ट है वो थोड़ा सा कहते हो कि ट्रिकी है। इसने क्या बोला है, उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, -10। नहीं -10 दिया हुआ है, देखो हाँ क्वेश्चन। -10। ठीक है, तो पार्टिकल का जो मोशन है वो चलो एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास में उसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये टाइम y कोऑर्डिनेट, ये y नहीं t। हाँ ये सर टाइम t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4, 6, 8, 10। ठीक है, ओके। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2, ओके। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, एंड एक्सेलरेशन इज 5। तो बताओ जब पार्टिकल का अपना इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसका अपना डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, हाफ AT²। या फिर यू कैन से दैट एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ दिस एरिया इज हाउ मच, दिस एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so it will come out to be 10, positive 10. मतलब the displacement of the particle is +10. Particle has started from here, this is -10. so when will it reach at t equal to 2? At 0. and the curve will be this one. क्यों सर इसमें कर्व क्यों करना है? अरे हाफ AT² है ना। हाँ, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाफ AT², मतलब कि स्क्वायर का ग्राफ। स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। पैराबोला। तो ये हमारा पैराबोला बन गया। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो t इक्वल टू 4। अब देखो इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना आएगा, इसका हाइट कितना है 10 और ये कितना है ये, तो इसका एरिया कितना हो गया 20। तो मतलब जब t इक्वल टू 4 हो जाएगा, और वो पैराबोला क्यों बनाएगा, हाफ AT² है ना बेटा। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 में एक्सेलरेशन है ना, देखो यहाँ पे है। हाँ सर इंक्रीज हो रहा है। तो जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाफ AT²। स्क्वायर आता है ना, तो स्क्वायर मतलब है पैराबोला। लेकिन अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो अपना वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो देखो ये बन जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। और इस अपने इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसका एरिया कितना हो गया 20 ना, 20। अरे भाई देखो ना, यहाँ पे 20। इसका एरिया 20 है, तो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 में डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 20। t इक्वल टू 2 पे तुम कहाँ पे हो, अपने x इक्वल टू 0 पे। नाउ यू हैव रीच हियर। ओके चलो आगे आते हैं। अब देखो t इक्वल टू 4 से और t इक्वल टू 8, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट। बट एक्सेलरेशन इज माइनस, है ना। देखो ना रिटार्डेशन हो रहा है। यस सर। ओके, इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा 10, इसका एरिया कितना आएगा -10। तो मतलब कि t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 8, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, 0। 20। अबे 0। अरे हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है फिर और नीचे आ रहा है, और हमारा जो में एक्सेलरेशन है तो मतलब क्या बनना चाहिए, अब कर्वेचर बनना चाहिए। तो मुझे यहाँ से जाना है और मुझे ऐसे जाऊंगा और मैं वापस नीचे आ जाऊंगा। ये मेरे पास में है t इक्वल टू 6, यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए 0, बिकॉज एट t इक्वल टू 6 माई वेलोसिटी इज 0, दैट मीन्स dx by dt, मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ शुड बी 0। तो देखो हमारा यहाँ पे देखो ना,
स्लोप कितना 0 है t इक्वल टू 6 पे। हाँ सर। बताओ t इक्वल टू 6 जो है पोजीशन क्या होगा उसका एरिया निकालते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कितना हो गया और 10। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 30। अब आगे आते हैं 8 to 10 इसका एरिया कितना हो गया 10 है ना। हाँ। लेकिन ये जो एरिया है किसमें आया है माइनस में, बिकॉज दिस इज अ बिलो लाइन। तो मेरा जो फाइनल पोजीशन है वो कितना होना चाहिए 10, क्योंकि मैं अभी कहाँ पे हूँ 20 पे हूँ ना। माई कोऑर्डिनेट इज x इक्वल टू 20 एंड माई डिस्प्लेसमेंट इज -10। so my final position will become x equal to 10, and in this interval also I am having acceleration, so my graph will be parabolic and its parabola will be like this, because at this point I want the velocity to be 0। तो मतलब कि स्लोप कितना होना चाहिए इस पॉइंट पे 0। तो देखो तो ये हमारा ग्राफ बन गया उसका। सर -10 से क्यों स्टार्ट किया? भाई उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका इनिशियल पोजीशन वो है मतलब कि -10 है। अच्छा देखो ना एट t इक्वल टू 0 s इज -10। तो मतलब कि द इनिशियल अब देखो पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा हो रहा है दिखाते हैं तुमको। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, ठीक है। दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू -10, दिस इज x इक्वल टू 20, दिस इज x इक्वल टू 30। तो पार्टिकल ने स्टार्ट कैसे किया मोशन, पार्टिकल ने स्टार्ट किया कहां से x इक्वल टू -10 से। कहां की तरफ गया वो पॉजिटिव की तरफ, देखो ना वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, फिर वो t इक्वल टू 4 सेकेंड तक चलता गया, यही जा रहा है पॉजिटिव में जा रहा है ना। ओके वो x इक्वल टू 20 पे आया, कब आया t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, और फिर वो यहां से यहां गया, यहाँ पे मेरे पास हो गया t इक्वल टू 6 सेकेंड। यहाँ पे उसका अपना वेलोसिटी कितना हो गया 0। अब उसने क्या किया, जो अपना वेलोसिटी का जो था ना डायरेक्शन उसको कभी रिवर्स कर दिया। देखो डायग्राम के अंदर उसका वेलोसिटी कैसा हो गया नेगेटिव हो गया ना। अब वो क्या कर रहा है वापस आ रहा है, तो वापस उसने आया, वापस वो कहाँ पे आया यहाँ पे आया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अब कितना टाइम हो गया ब्लैक वाला टाइम t इक्वल टू 8 सेकेंड है ना। और फिर वो वापस थोड़ा सा और चला लेकिन वो यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे आ गया। ये जो टाइम है दिस इज t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ओनली। तो ये जो है ये इसके पैरामीटर्स हैं in terms of a graph, that how velocity is changing with respect to time, how acceleration is changing, and how position is changing with respect to time। पार्टिकल का ये एक्चुअल मोशन का सीन है। ओके फाइन। यस सर हमें इसकी इक्वेशन बनाने बोली तो कैसे बनाएंगे? इक्वेशन तो मैं हर पार्ट में अलग अलग आएगी ना भाई। हाँ, तुम्हारे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन तुम्हारे अलग अलग है, तो हर जो सेगमेंट है कहते हैं हर सेगमेंट की अलग अलग इक्वेशन आएगी। हाँ सर ठीक है चलो आगे आओ और बताओ। सर किसी एक सेगमेंट की बना के दिखाओ ना। अरे इसकी तो हो गई ना, इसका भाई हमको पता है कि x फाइनल माइनस x इनिशियल ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, तो प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 5 इंटू टी स्क्वायर। ओके इनिशियल पोजीशन कितना है -10, तो x फाइनल कितना आ जाएगा सर वो -10 5 नहीं प्लस वो 10 होगा ना। कहाँ पे वो क्यों हाफ इंटू 5। हाँ हाफ इंटू 10, तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर। तो ये लो इसकी इक्वेशन ये वाली आ गई। तो ऐसे आगे वाले भी निकाल सकते हैं हम। हाँ सर। ओके और बताओ। सर 9th वाले में डाउट है। 9 9 9
नाइन्थ क्वेश्चन भी बेटा सेम है, जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना उसका सेम क्वेश्चन है नाइन्थ। देखो नाइन्थ में हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है। एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है और जो अभी हमने बनाया वो तो एक जैसा ही है ना, देखने में देखो एक जैसे लग रहा है। हाँ सर। तो कोई इतना अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। देखते हैं तो हमारे पास कितना टाइम है, 5, 10, 40 तक जा रहा है ना। तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। पहले हमारा एक्सेलरेशन कितना है, 0 से 5 तक 2, तो 0 से 5 तक हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है 2। फिर बाद में 5 to 15 तक 0, तो 5 to 15 तक 0, ये मेरे पास में 5, ये मेरे पास में 15। फिर 15 to 25 तक कितना है, -2, 15 to 25 -15। डॉटेड ही बनाना होगा ना हमेशा, हाँ डॉटेड बनाना होगा ना। हाँ, और फिर ये हमने बना दिया 35, और फिर इसके बाद में क्या है 40। 40 पे कितना एक्सेलरेशन है, 2 है प्लस 2। सेम वही अपना पे पहले वाला, ठीक है। तो ये हमको एक्सेलरेशन का दिया हुआ है ग्राफ। तो पहले तो वेलोसिटी वाला बनाओ इससे। तुम बताओ, अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन मोशन वाला है पहले। नहीं भाई, मैं हर सेगमेंट में अलग अलग आएगा ना, ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि लग एक जैसा आएगा। नहीं सर, पहले वाले इसमें आएगा 5 सेकंड। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा v, यहाँ पे मैंने लिखा t। ओके बताओ, 0 से 5 अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन 2 है तो मतलब स्लोप कितना हो गया, 2। हैव टू मेक ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 2, और कहां तक जाना है तुमको, 5 सेकंड 5 तक। ये लो, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास में हो गया t = 5, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10, है ना। v = u + at, और यू कैन से एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना हो गया 10। अब देखो 5 से 15 तक हमारा जो मतलब एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नहीं अपना कितना है 0, तो अपना वेलोसिटी कैसा आएगा, कांस्टेंट। ये लो यहाँ पे आ गया। अब 15 से 25 तक हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, डिक्रीजिंग। हाँ कम हो रहा है ना, डिक्रीजिंग है, -2 है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी विल डिक्रीज, नीचे डिक्रीज। तो बताओ हमारा वेलोसिटी है 0 कब होएगा, देखो यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, यहाँ एक बॉक्स बन रहा है, देखो इनका एरिया बराबर है क्योंकि हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है। तो t = 20 पे हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ से एक लाइन जाएगी और ऐसे, ये हमारे पास में है 20, यहाँ पे आ गया मैं 25 पे। अब मेरा वेलोसिटी कैसा हो गया, नेगेटिव। फिर t = 25 से 35 तक क्या हो रहा है, 5 से 15 जैसा। हाँ हाँ 5 से 15 जैसा वेलोसिटी कांस्टेंट 0 है। फिर 35 से 40 हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, बढ़ेगा, एक्सेलरेशन। और मैं यहाँ पे आ गया ना 0 पे, क्योंकि अब देखो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, सारे एरिया कैसे हैं, सेम है ना। और क्या पॉजिटिव में भी 2 हैं और नेगेटिव में भी 2 हैं। तो हमारा जो है ना वेलोसिटी में जो चेंज आया वो कितना हो गया, 0। तो अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी कितना हो गया, 0। सर वो लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा था ना क्वेश्चन में, वो नहीं समझा मैंने। सर वो vx मतलब क्या है, हाँ vx मतलब
मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। vx VX मतलब बोलते कि हैं। अरे vx का मतलब होता है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सर वो ठीक है, इनिशियल है। नहीं नहीं इनिशियल आगे लिखा हुआ है ना एट t इक्वल टू 0। हाँ भाई इनिशियल, हाँ। हाँ तो इनिशियल हो गया ना वो। तो अब देखो, तो ये हमारे पास में आ गया। अब मुझे बताओ कि पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। 0। 0, क्योंकि देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है दैट गिव्स मी टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, सर चलो 15 से 25 का सर ग्राफ कैसे बनाया? 15 से 25 देखो ना, हमको एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है ना ये वाला। यस सर। और उसकी वैल्यू कितनी है -2। तो मुझे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि जिसका स्लोप कितना हो -2। तो -2 है इसका स्लोप। इसकी हाइट कितनी है 10 और ये कितना है 5। डिक्रीजिंग यस होना चाहिए ना ग्राफ। अब देखो सर अब हाँ नहीं सर, आपका करके लो पहले, वो वाला जो आप बोल रहे थे। अब हमको निकालना है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये देखो ये हम बनाते हैं पोजीशन टाइम, सेम चीज। सर ये v ऑफ x, हेलो, हाँ बोलो। ये v ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या है, मतलब सबस्क्रिप्ट x। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 0, इसका मतलब ये होता है। अच्छा अच्छा, तो अभी ये पार्ट हम लोग इस ग्राफ में करेंगे ना? नहीं नहीं अरे वो तो हो गया ना। देखो ना मैंने अरे हाँ हाँ ये यहाँ पे हाँ, लिखा ना ओके 0। ओके ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया मैंने, 0 लिया ना, क्योंकि मुझे यस, क्वेश्चन में दिया हुआ था 0। हाँ ठीक है अब मैं ठीक इनिशियल जो है ना पोजीशन भी क्या लूंगा, मैं 0 लूंगा इनिशियल है, पोजीशन। 0 क्यों, मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में। और पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था -10। -10 हाँ लिया था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनिशियल जो पोजीशन है जो है वो -10 है। अब देखो, अब हमको रिप्रेजेंट करनी है चीजें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो, ये हमारे पास में x इक्वल टू 5 वाली लाइन, ये x इक्वल टू 10 वाली लाइन, 15 वाली लाइन, 20, 25, 30, 35, 40। अब मुझे बताओ पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन अगर 0 है तो फाइनल पोजीशन भी क्या होना पड़ेगा, 0 ही। 0। क्योंकि पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। इसका एरिया जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया इसका नेगेटिव है। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 5। सो द इंटरवल 0 to 5 माई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, so when my acceleration is constant then displacement का इक्वेशन क्या होता है, क्या who will tell me? संजना, 8 okay, संजना from Thane. Yes, sir. Okay, you tell me the first part of this thing. From t equal to 0 to 5 my acceleration is constant and the value of acceleration is 2. Okay, so what will be my equation for a displacement? ये अपने इस वाले सेगमेंट के अंदर t equal to 0 to 5. If your acceleration is constant, your initial velocity is 0, then what is your equation for a displacement? half at square. Sanjana? हाँ sir. Okay, you tell me na which is okay equation you will apply. Half at सेकंड वाला ना? square. Yes, सेकंड half, इक्वेशन। yes, half at square will apply, and half at square means the graph should be parabola. Okay, area of velocity time graphs will give me displacement. तो इसका एरिया कितना है एक छोटे से अपने ट्राइंगल का, half into base into height, तो 50, this is 25। 25.
Okay, so my particle will start from here and goes to 25. फिर 100 और ये यहाँ पे आ गया ना, और ये जो ग्राफ है ये कैसा होना चाहिए हमारा, स्क्वायर वाला ग्राफ होना चाहिए ना 25। अब देखो नाउ बिटवीन 5 to 15 इसका एरिया कितना 100 बन गया, इसका हाइट 100 है 10 और विड्थ भी कितना है 10, तो 100। और and the velocity is constant, so if the velocity is constant then my line should be straight line, क्योंकि slope of a position time graph gives me velocity. So see this straight line, okay, up to 15, and this point will become 125 because extra 25 plus 100 ना. Okay, now this last triangle, this is how much, इसका एरिया भी कितना है 25, but और इसका एरिया 25, इसका एरिया कितना हो गया -25। तो now I will make a graph between 15 to 25. This is my 15, this is my 25. Between 15 to 25 acceleration is constant, acceleration is negative, okay, and my total displacement should be 0. So my graph will look like this. maximum पैराबोला, क्योंकि स्क्वायर है inverted और मुझे यहाँ पे वापस आना है, एंड आई विल से कि दिस पॉइंट एट t equal to 20 slope should be 0 ना. हाँ सर, because slope of an position time graph gives me सर velocity. तो velocity at t equal, हाँ बेटा बोलो सर आप एक बार ये मतलब समरी एक बार लिखवा दीजिए ना कि मतलब इसका स्लोप मतलब वेलोसिटी होता है, मतलब ऐसा फिर तो कैसे ये तो मतलब मैंने लिखवाया हुआ है ना बेटा, वो नहीं तो सर मैंने आपने तो सब साथ में लिखवाया था ना, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे तो बेटा हर क्वेश्चन में थोड़ी ना लिखोगे, तुम यहाँ से कंपेयर करो ना। देखो ये जो है, ठीक है, ये क्या है ना, पोजीशन है, इसका स्लोप ना किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, ठीक है, इसके ऊपर है ना, इसका स्लोप ये, ठीक है, और इसका स्लोप ये। अगर तुम एरिया लोगे तो ऊपर से नीचे आओ, इसका एरिया ये और इसका एरिया क्या बन जाएगा, ये नीचे वाला। ठीक है सर मैं बोल रहा था कि आपने वो जो दिया था ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मतलब एरिया होता है, वो वेलोसिटी होता है, वो वाला मैं बोल रहा हूँ। तो देखो ना, ये मेरे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। तो मैं यहाँ पे आ गया ना वेलोसिटी वाले ग्राफ पे चेंज इन वेलोसिटी ना। हाँ सर, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो जो भी है वही है, ठीक है। और अगर मेरे पास है ना वेलोसिटी है, वेलोसिटी का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो स्लोप, ठीक है, और अगर मैं और नीचे आ रहा हूं तो एरिया। तो बिटवीन 15 to 25, 15 to 25 में इफ आई सी माई टोटल एरिया इज 0 प्लस 25 माइनस 25, तो पहले मेरा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, फिर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, एंड माई ग्राफ विल बी कर्व बिकॉज आई एम हैविंग एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं। बिटवीन 25 to 30 इसका एरिया कितना है, 100, लेकिन एरिया कैसा आ रहा है, माइनस में, नेगेटिव, मतलब कि पार्टिकल को 100 नीचे आना है, तो 125 से कहां पे आ जाएगा, 25 पे, और इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, इसका स्लोप देख लो ना, नेगेटिव है। ओके, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, देखो ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और इसका एरिया कितना है, -25, मतलब पार्टिकल को 25 जो है ना अपना डिस्प्लेसमेंट कम करना, और कहाँ की तरफ आना है, नीचे की तरफ, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव, तो इट विल कम लाइक दिस। और फाइनल पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0, तो देखो ना इसका स्लोप कितना बन रहा है यहाँ पे, 0। So this is my position time graph for this. Whole thing is symmetrical about t equal to 20, क्योंकि t equal to 20 के अबाउट में देखो तुम्हारा एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो भी कैसा सिमेट्रिक है, मिरर इमेज है ना पूरा,
यस सर। उसके अबाउट हमारा वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो भी कैसा मिरर इमेज है, एंड t इक्वल टू 20 के अबाउट के अंदर हमारा पोजीशन का जो ग्राफ है वो भी कैसा है, मिरर इमेज। हाँ सर एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ये है ना, वेलोसिटी ना? नहीं तो भाई, पोजीशन और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है, मीटर इंटू सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी कुछ नहीं होता है। अच्छा मतलब वो जर्क क्या ना? नहीं कुछ नहीं है। अबे तुम कहाँ, मुझे बताओ ना, मीटर इंटू सेकंड क्या होता है, मीटर इंटू अच्छा सेकंड। मीटर बाय सेकंड होता है, मीटर तो पर वो तो सेकंड। स्लोप हो गया ना फिर। हाँ सर। तो भाई लिखा तो है कि पोजीशन वाले ग्राफ को स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी वाले का स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन का एरिया निकालोगे तो अपने पास वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी का एरिया निकालोगे तो यू विल गेट पोजीशन। यस अब सर। तुम इसका, ठीक है, अब इसका एरिया निकालोगे तो कोई again मतलब नहीं है ना, इसका एरिया कुछ होता ही नहीं है, बस वो मतलब कि रिप्रेजेंटेशन, एरिया होता है बस, वो मतलब उसका कोई again फिजिकल सेंस नहीं है, मीनिंग नो फिजिकल, हाँ मीनिंग नहीं है उसका। तो ऐसे हम ग्राफ को बड़ा हर स्टेप को, whenever your velocity is changing or your acceleration is changing or velocity is changing the direction, we will very closely monitor those points. We will see that what is happening, either the particle is going in the upward direction or downward direction, anything. So whenever I am making the graph, I will taking one segment. In that segment, acceleration is constant, okay, and when I'm solving the displacement wala curve, then I am taking the area of VT graph so that I can get the exact value of a position. Okay, move forward. Yeah, tell me. और कौन सा क्वेश्चन? सर नहीं, डाउट हो गया, सारे हो गए, ऐसा कैसे? मेरा हो गया, पता नहीं। बाकी लोग? हाँ सर 6 1 सिक्स का एक सेकेंड। हाँ कौन सा? 6 का सी पार्ट सर। 6 का सी पार्ट क्या हुआ? अरे इक्वेशन लिखनी है ना, इक्वेशन लिखना बताया तो अभी मैंने, ये तो ऊपर वाला ग्राफ ही है ना। हाँ किसने पूछा? सर मैंने। क्या नाम है? सर के दी। हाँ तो बताओ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आया तुमको? द सेकंड वाला प्रॉब्लम है हाँ सर, वो सी का फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला नहीं हो रहा था। सी का सेकंड वाला t इक्वल टू 4 to 8, तो t इक्वल टू 4 to a के बीच में बताओ मुझे कहाँ है तुम्हारा ग्राफ। तो हम तो इसी क्वेश्चन में है ना, इसी में। हाँ सर। ओके मुझे बताओ 4 to 8, I will just talk about 4 to 8, 4 to 8 हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एट t इक्वल टू 4 इनिशियल वेलोसिटी कितना है बताओ? t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कितना है? 10। ओके तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना बन गया, 10। ओके इस पूरे इंटरवल में हमारा एक्सेलरेशन कितना है? t इक्वल टू 4 -5 -5 है ना, ये देखो ना हमने ग्राफ में बनाया हुआ है, -5। ठीक है ओके हमारा इनिशियल पोजीशन कितना है, t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है, x इनिशियल। देखो यहाँ पे ग्राफ में, कहाँ पे, 4 पे, 4 पे कहाँ पे है तुम्हारा पार्टिकल, ये है ना अपना x इक्वल टू यहाँ पे अपने 20 पे, राइट? हाँ सर। तो अब बताओ तुमको क्या निकालना है, बताओ। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मुझे फॉर्मूला बताओ डिस्प्लेसमेंट का। S equals to ut plus half LT। ओके एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पोजीशन के टर्म में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन, और हमारा इनिशियल कितना है 20 इक्वल टू यू कितना है 10, है ना?
यस सर। तो u t, ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ एक्सलेशन कितना है -5 इंटू अपना टी स्क्वायर। बस ये हो गया ना, अपने पास इक्वेशन आ गया। सर आंसर में t-4 ऐसे था। अरे तो t-4 ठीक है, मैं यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब t का वैल्यू मैं क्या डालूंगा 1 2 3 4 5, मतलब हमारा जो टाइम है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 1, क्योंकि t इक्वल टू 4 को मैंने क्या बोल दिया, 0 बोल दिया ना। हाँ सर। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ग्राफ वाले जो टाइम है और क्या अगर मान लो उसको डालना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि x - 20 इक्वल टू u, u कितना है मेरे पास में u, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा t-4 प्लस हाफ -5 t-4 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अपने t का वैल्यू स्टार्ट कहां से करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 4 5 6 7 8, इसके अंदर मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, इसके अंदर यहाँ पे आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4, इसके अंदर कहां से स्टार्ट करूंगा 4 5 6 7 8। डिफरेंस ये है अपने इन दोनों इक्वेशन में, ठीक है, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ओके सर, थैंक यू। है ना, पहले वाली इक्वेशन में व्हाट वी डिड, वी assume that t equal to 4 is my initial point, so my that time will start from 1 2 3 4, right? Okay, in this what will I do, I will take time from the initial, so my time is starting from t equal to 4, so 4 5 6 7 8 is the line। तो अब तुम इन दोनों को कंपेयर करो, आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है, ठीक है ना। ओके आगे नेक्स्ट, किस किसने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए हैं ये तो बताओ। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आदित्य सिंह। हाँ आदित्य कितना किया, हेलो आवाज नहीं आ रही है, आवाज धीरे आ रही है उसका। ओके मोहित। यस सर, हो गया पूरा। पूरा हो गया, गुड। हिमानिश गोयल। हाँ सर हो गया। कंप्लीट। यस सर, लेक्चर 5। गुड। मानसी। हाँ सर, डाउट थे वो कंप्लीट हो गए, 9 और 6 उसमें भी डाउट था। ओके गुड। नव्या। यस नव्या। सर। हेलो या हेलो हेलो, हाँ बोलो। हो गया, वो एक 9th वाला डाउट था, वो हो गया क्लियर। अच्छा हो गया ना क्लियर, गुड। श्रीकांत। यस सर, मेरा 6th और 9th डाउट था, हो गया। वो हो गया 6th राइट 8th और 9th था। हाँ यस। सौरेश। सौरेश सर। यस बोलो बेटा, कहाँ तक किया, कितना किया। सर थोड़ा हुआ था। थोड़ा कितना, 4 क्वेश्चंस के पास सॉल्व किया था मैंने। हाँ 4 क्वेश्चंस के पास सॉल्व किया था। and how much now, now I have solved questions 6 and 9 also, right? Yes sir. Next time it should be complete every question. Okay Vansh. हाँ सर हो गया। हो गया, good. आर्यन। पनवेल। सर कुछ लेफ्ट ही हो गए। हाँ कुछ लेफ्ट हो गए अभी अभी। क्या बात कर रहे हो यार, ये सही है, होमवर्क का जब पूछने लगो तो लेफ्ट हो जाओ। हाँ सर 4-5 जन लेफ्ट हो गए। क्लास से कैसे भागेंगे। 53 था।
49 Who is होगा। this? Who is this Panvel roll number 031? सर मैंने 6th क्वेश्चन तक किया। लेकिन बेटा तुमने अपने रोल नंबर के सामने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, मैंने इसलिए बोला था है ना। तो जब अगली बार से लिखो ना तो अपने रोल नंबर के साथ में अपना नाम भी। क्या नाम है तुम्हारा? देवांश। देवांश, अच्छा तो ठीक है, तो नाम लिखो। और सर कौन? रेज हैंड का मोहित ऑप्शन आ रहा क्या रहा है? है, रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम का नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तो अभी नहीं आएगा, जब तुम अगली बार अपना क्लास अटेंड करोगे ना उस टाइम करना फिर वो। ओके सर। अभी मैंने ऑफ किया हुआ है वो। नूतन सर ऑलमोस्ट हो गया सर, सिर्फ 9th वाले में Almost डाउट था, वो हो वो गया। भी हो गया। चलो गुड। दीप, तन्वी, Sir, done. डन, गुड। Yes. श्रावणी, Sir, done. कंप्लीट, वेरी गुड। Yes. ओके, तन्मय, यस सर, डन हो गया, वेरी गुड। सर। मुझे उसके बाद जो लेक्चर 1 to 5 है ना, हाँ उसका 15th क्वेश्चन में डाउट था। चलो ठीक है, उसका 15th करते हैं। ओके, और आते हैं अर्थ राय। यस सर, 5th क्वेश्चन तक किया मैंने, थोड़ा टाइम हाँ लग रहा है सर। 5th क्वेश्चन तक किया सर मैंने। ओके, तो आगे वाले भी कंप्लीट करो भाई। हाँ सर, गर्व, गर्व, डन सर। एंड हु इज दिस थाने रोल नंबर 13? Thane roll number 13, roll number 12. They have not written the names. So if you are attending beta, so first put your name so that you know I can call you by names, not by roll number. Okay. Sanjana कहाँ है? I cannot see Sanjana. 012 sir. 012 is Sanjana. हाँ सर। बेटा है ना, write your name. Okay, otherwise. सर नेम को ऑप्शन नहीं आ रहा है। No, you will not get that option now. When you start the class first time, then you will be able to see the option. Now I have disabled that option. So tell me how many questions you have done? सर थोड़ा किया है सर। थोड़ा कितना? I want it complete. Give me the number. How many questions you have done? सर चेक किया है। Okay, चलो गुड। सर अभी वो 1 to 5 पूरा है, वो होमवर्क है ना नेक्स्ट? हाँ हाँ, वो तो करना ही है। अब तुम्हारे 1 to 5 सारे हो गए। तो आई वाज टेलिंग क्वेश्चन नंबर 15, समवन आस्क्ड मी, हु आस्क्ड मी? गर्व है ना? नहीं सर, तन्मय। तन्मय या सर, तन्मय। हाँ, सो 15 ओके। हाँ बताओ, व्हाट हैपेंड? Question number 15. See, the thing is that the question is very easy, okay, but the statements, no, those are you can say a little bit confusing. Like in a car A takes 4 seconds less of car B. Suppose, okay, this is my start point. This is my end point. Okay, suppose I have taken this t equal to 0. This is car A, this is car B. In a car takes a 4 second less of B. ये यहां से यहां जा रहा है, ये यहां से यहां गया. Suppose car B takes time t. So how much is the time taken by car A? T
t minus t minus 4. t minus 4. 4 because it has specified that car A is taking 4 seconds less. Okay. And With a velocity of car velocity A. v more than car B, उसका वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो सपोज इसका वेलोसिटी अगर मैं अज्यूम कर लूं कि इसका वेलोसिटी u है, ओके, इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा u प्लस v, फाइनल वेलोसिटी. इट इज सेइंग दैट कार A takes 4 seconds less than car B and passes the finishing point with a velocity v more than car A. Assume that car start from rest. The initial velocity of इसका भी 0 and initial velocity of B का भी 0. ठीक है. Acceleration of A is 4 meter per second square. Acceleration of B is 1 meter per second square. Find कोई अलग सर इनिशियल वेलोसिटी को कोई अलग वेरिएबल मान लो, क्योंकि आपने u मान लिया है उसका फाइनल वेलोसिटी. नहीं तो इसको कह दो ना 0 है इनिशियल, बस कोई अपना हाँ. हेडेक ही नहीं है ना, इनिशियल 0 है, कोई मतलब उसका तो कोई आएगा नहीं ना, रोल ही नहीं आएगा कोई. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल दिस थिंग्स. डिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ. ठीक है. सो फर्स्ट आई विल अप्लाई इक्वेशन 1. सो व्हाट इज इक्वेशन 1? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. सो फॉर द कार 1 तो क्या बन जाएगा, u प्लस v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन 4 तो कितना टाइम लगा है, t minus 4. ओके. तो इसको हटाई दो अपने 0 को, क्या करना है 0 का, तो इट विल बिकम 4 into t minus 4 and for car B the final velocity is u, the acceleration is 1 into कितना टाइम लगा है, t and again distance travel by car 1 कितना है, d. तो क्या आएगा, d इक्वल टू अपना इनिशियल वेलोसिटी 0 तो हाफ इंटू a इंटू t माइनस 4 का स्क्वायर एंड d इज हाफ इंटू 1 इंटू t स्क्वायर. अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 4 t माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर. अब दोनों तरफ रूट ले लो. ठीक है, यहाँ भी रूट ले लिया, यहाँ भी रूट लिया, तो क्या बनेगा 2t माइनस 4 इज इक्वल टू t. तो यहाँ से क्या बन t जाएगा, माइनस 4 2t माइनस 8 इज इक्वल टू t. तो t माइनस t बाई 2 इक्वल टू 4 तो t इक्वल टू 8. ओके, उसको यहाँ डाल दो. अब यहाँ पे पहले इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है ना u को, तो u को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, v इक्वल टू 4 t माइनस 4 माइनस t. ठीक है. अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो 8, तो v इक्वल टू 4 8 माइनस 4 माइनस 8, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 4 16 8 आ जाएगा आंसर. बस. तो देखो सारी जो इक्वेशन थी वो तो इजी वाली थी, बस वो ये था कि हमको थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा. u का वैल्यू 8 आएगा ना, क्या बेटा, तो u का वैल्यू 8 t इक्वल टू 8. हाँ तो मैंने लिखा ना 80 तो लिखा. तो u का बोल रही हूँ, u इज ए नहीं तो उससे नहीं फर्क पड़ता ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट u. ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, द मतलब एक्स्ट्रा वेलोसिटी व्हिच वाज हैविंग, है ना. यस सर. ओके. और चलो लेट्स मूव टू lecture 6. In lecture 6 we will solve 2-dimension motion. So let's start with the definition of 2-dimension motion. तो इससे 2 coordinate are changing when, so if I want to make a statement, I'll say a particle moving such that
two coordinates of that points are changing. So उसको हम बोलते हैं two dimension motion. Okay, now tell me, straight line जो motion होता है that is one dimension motion or two dimension motion? One dimension. Okay, I'll give you some example. Suppose this is my x-axis, this is y-axis. Okay, this is my origin. This is my point 1. This is okay. बताओ इसके बारे में क्या बोल सकते हैं ग्रीन वाले के बारे में? इसका मोशन कैसा है? I will say that x and y coordinate of the points are changing, right? So Yes, I sir. will say this is two dimension motion, right? Yes, sir. और इसका path कैसा है? Some curve. Because I don't know the structure, na, so I will just say curve. Okay. Now I have taken one more example. This. Straight line. ये क्या है? This is no. First tell me this is one dimension motion or two dimension motion? One. Two dimension. Two dimension. बेटा. Yes. See देखो. X और Y दोनों में भी चेंज हो रहा है. सर See, 2 डायमेंशन. see इसका x coordinate हो रहा है change, हाँ हाँ. right? और इसका Right. y coordinate is also changing. Okay. So this is, I would say, two dimension, but straight line. Straight line. अब मुझे बताओ कि what is the condition for straight line motion? हम बोलते हैं velocity vector and acceleration vector should be parallel or In anti-parallel. same direction. हाँ. ठीक है? So straight line motion can be one dimension, can be two dimension. Like अगर मैं इसकी बात करूं, suppose if I take one more example, this, ये कैसा है? This is one dimension motion. Sir क्यों? कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वन ही होगा उसका. चेंज हो रहा है. सर उसका एक ही सर उसका रेड एक ही- वाले के लिए हम हमारा एक्सिस चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब मैं मेरे एक्सिस चेंज होकर नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए अगर मैं एक्सिस को चेंज कर दूंगा तो फिर वो अपना वन डायमेंशन मोशन बन जाएगा. नाउ माय एक्सिस आर फिक्स. तो अगर मैं इस गिवन रेफरेंस फ्रेम की बात करूं तो इस गिवन रेफरेंस फ्रेम में रेड लाइन जो है दैट इज अ टू डायमेंशन मोशन, बट दैट एंड गोल्डन लाइन इज वन डायमेंशन मोशन. If I will move my axis, then it can change. One dimension motion can change into two dimension motion. Sir कैसे sir? अरे मैं एक्सिस को मैं रोटेट कर दूंगा ना. अगर मैं एक्स एक्सिस को अपने रोटेट करके इसके यहाँ पे ले गया, इस लाइन के अलोंग ले गया, तो क्या होगा? तो फिर तो अपना वन डायमेंशन में हो जाएगा ना वो. यस हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इन गिवन रेफरेंस फ्रेम हम ये सब कुछ कर रहे हैं. अब देखो, हमने we have done the components of vector, right? Like this. This is my x-axis. This is my y-axis. Suppose I have this vector A and the angle is theta. And suppose this vector is vector A. So इस vector को component form में कैसे लिखते हैं? A vector is यहाँ पे क्या आता है? A cos theta. A cos theta, theta और ऊपर I cap A sin theta. plus sin theta theta. J cap. I will say the component with the line making an angle is cos, and the angle with the other line is this. I cap and J cap, angle between I cap and J cap is 90 degrees. 90 degree. And if two vectors are perpendicular, we call them independent axis. Independent axis. इसका मतलब क्या होता है independent का? If I am doing something in x direction, then there will be no effect on the y-axis like this. Suppose this is x-axis, this is y-axis. Okay.
सपोज आई एम मूविंग ऑन दिस लाइन, मैं यहां से चल के यहां जा रहा हूं, देन माई y कोऑर्डिनेट इज not changing. X coordinate is changing. Only x coordinate is changing. So y coordinate is completely independent of my x coordinate. And suppose if I am moving along this line, then I will say that only things are changing in y direction. In the x direction there is no change. ये कौन गाना गा रहा है? So इसलिए हम क्या करते हैं कि आप चेक करने तक माइक बंद कर देते हैं. Whatever component we are making, that is why we make a perpendicular component, because perpendicular components are independent components. Okay, so what we will do now we will solve questions in 2 one-dimension motion, then combine. अच्छा, मतलब सर हम क्या करेंगे, पार्टिकल को दो एक्सिस में सॉल्व करेंगे, एक हमारे पास में एक्स एक्सिस में विल सॉल्व, एक हमारे पास में करेंगे वाई एक्सिस में सॉल्व, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना दोनों. सर हाँ, इसको अलग अलग सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है? भाई बेनिफिट तो यही है ना, एक पार्टिकल कहाँ जा रहा है मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है, वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है. अच्छा, ठीक है, तो and I know that x and y are completely independent, so I can solve this question. So like my equations will become like this: vx equal to ux plus ax into time. इसका मतलब क्या हुआ? Final velocity in x direction. In x direction. ठीक है, this is initial velocity in x direction. X. This is acceleration in x direction. So I can make two separate things. Here I will write Vy equal to Uy plus Ay into t. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x is displacement in x, or I can write better x final minus x initial. This will become ux plus half ax into t square. यहाँ क्या बन जाएगा? y final minus y initial equal to uyt plus half ay t square. Yes. And finally जब भी मुझे अपने लिखना है, अगर मैं लिखना चाहूँ पोजीशन वेक्टर r, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x I cap plus y j cap, और if I want to write it in the coordinate form, तो I can write like this xy. मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं. मैग्नीट्यूड सबको, if I know the position then I can tell everything ना. तो देखो जैसे how do we solve, like a point starts. सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना. हाँ रुको पहले मुझे लिखने दो क्वेश्चन. A particle start from 3,4 with velocity 3i cap plus 4j cap and acceleration i cap minus j cap. Fine. तो सर यहाँ से हम लोग i cap j cap यूज कर सकते हैं? Yes, final position. भाई वहां तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, तो i cap j cap लिखने की अपने को जरूरत ही नहीं थी ना. सर सेम ही करना है, सिर्फ दोनों अलग अलग करना है ना. Now find final position at the end of 5 seconds. बताओ, solve. तुमको क्वेश्चन लिख दिया है, एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया है, उसका इनिशियल पॉइंट तुमको दिया हुआ है, उसका इनिशियल तुमको वेलोसिटी दिया हुआ है, तुमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल पोजीशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड.
सर हो गया। हेलो बताना सर, मत, आंसर मत बताना। 30.5 नहीं आई नहीं नहीं कैप। नहीं 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 नहीं, आंसर मत बताना, बाकी लोगों को करने दो। नहीं तो सर और एक बार सेपरेट कर दिया फिर आई कैप जे कैप लेने की जरूरत बस नहीं है ना? भाई सेपरेट कर दो, उस टाइम पे क्या दो, जब फाइनल आंसर जब लिखोगे। सर हो गया। अभी सब लोग होने दो, सबको होने दो। सर एक डाउट था। बोलो। सर हमारे पास इक्वेशंस है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सर उसमें यस, i जो हमारा वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे या अरे स्केलर? नहीं, वो इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन के लिए है ना। तो जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या मतलब है स्ट्रेट, तभी तो मैंने कहा था कि ये जो इक्वेशन है ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए है। यस सर। तो जब हम स्ट्रेट लाइन करते हैं तो हमको आई कैप जे कैप लगाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ती ना, प्लस माइनस में काम चल जाता है, क्योंकि या तो तुम प्लस में हो या फिर माइनस में हो, इसलिए। गए तो हम सिंपली सॉल्व करो। यहाँ पे तुमने लिखा x y, ओके इनिशियल वेलोसिटी, ओके उसका इनिशियल अपना कोऑर्डिनेट कितना है 3, इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट 4। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 4, यहाँ पे एक्सेलरेशन 1, यहाँ पे एक्सेलरेशन -1। देखो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन देन आई कैन डायरेक्टली पुट प्लस और माइनस साइन, बिकॉज आई नो ये या तो एंटी, देखो ना यहाँ पे एक लाइन लिखी थी मैंने, ये व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल लाइन, तो या तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही तरफ है या फिर अपोजिट है, तो प्लस माइनस से हमारा काम चल जाएगा, हमको आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, इफ आई वांट टू फाइंड फाइनल पोजीशन, तो क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ये होता है। यस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो एक्स फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 3। ओके इनिशियल वेलोसिटी 3 इनटू कितना टाइम बोला है 5, ठीक है, प्लस हाफ हमारा एक्सेलरेशन 1 इनटू 5 स्क्वायर, तो हमारे पास फाइनल पोजीशन कितना आ जाएगा 3 प्लस 15 प्लस 25/2। तो ये हमारे पास में फाइनल कोऑर्डिनेट आ गया, कितना हो गया 36 प्लस 25 कितना होता है 36 प्लस 25, ये हो गया 61/2, यस है ना 61/2। हाँ यस सर। हाँ सर 61/2। अब यहाँ पे निकालेंगे, देखें y फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 4 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 4 इनटू 5 प्लस हाफ इसका एक्सेलरेशन -1 इनटू 5 का स्क्वायर, तो yf -4 इक्वल टू 20 माइनस 25/2, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 20 प्लस 4, ठीक है, और ये कितना होता है 12.5, तो कितना होगा 11.5 और इसमें सर कितना हो जाएगा 30.5। तो हमारे पास फाइनल जो आएगा पोजीशन, तो या तो ऐसे लिख दो कि 30.5 कोमा अपने 11.5, या फिर क्या लिख सकते हो 30.5 आई कैप प्लस 11.5 जे कैप। सर हाँ बोलो। सर मैंने इक्वेशन में डायरेक्टली आई कैप और जे कैप के फॉर्म में पुट किया, मुझे सेम ही आंसर आ रहा है। हाँ तो सेम ही आएगा,
भाई क्योंकि तुम आई कैप को इंडिपेंडेंटली मतलब कि ऐड वैड कर रहे हो और जो अपना Yes, sir. जे कैप है उसको भी तो बात तो तो वही है same ही ना, इन आएगा। दोनों को कंबाइन करके करो यार, तो उसमें अलग कैसे आएगा? भाई मैं अगर हर जगह पे आई कैप लगा के और ये बीच वाली जो लाइन है उसको इरेज कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ सर, आई कैप पे आएगा, स्ट्रेट है ना? लाइन ही है। अच्छा, तो yes, sir. बताओ, अब अगर मुझे सर, तो फिर निकालना है आगे क्या वेलोसिटी निकालना है, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? vx आई कैप प्लस vy जे कैप। ठीक है, ये होता है। ओके, ये क्या होता है? vx ux प्लस ax इनटू टाइम आई कैप प्लस yx uy sorry, plus तुमने ay ऐसे किया था ना? into d। हाँ भाई, तो ये ऐसे कर दो, चाहिए एक ही बात है क्योंकि तुम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो दोनों को। ux कितना है? 3 है ना? 3, तो 3 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 1, तो 1 इंटू 5 आई कैप प्लस हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 4 और एक्सेलरेशन -1 -1 जे कैप। तो ये कितना बन जाएगा? 8 आई कैप माइनस जे कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। अब तुमसे कोई पूछे स्पीड कितना हुआ तो क्या बोलोगे? स्पीड मॉड लेंगे मैग्नीट्यूड 8 आई कैप प्लस जे कैप 64 प्लस नहीं रुको हाँ √65 √65 meter per second. So in this way, okay, you can find everything. तुमको क्या करना है कि x और y जो है, these are two straight line basically, x axis and y axis. So you have to solve the question along x axis and y axis मतलब you can independently, because these lines do not interfere with each other. So तुम आराम से इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। सर 1 मिनट सर, ऊपर का दिखाओ ना। सर आप हॉरिजॉन्टली पकड़ो ना फोन को। यो हाँ सर। इसमें आधा क्वेश्चन, इसमें आधा हाँ सर, क्वेश्चन नीचे का नहीं दिख रहा। पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता ना सर, पर हमें बड़ा दिखता है। सर थोड़ा सा दिखाओ ना वैसे, मतलब फिर मेरा दिखना है नीचे का बस। सर आप भी के लिए दिखाओ, बाद में आप लिखते वक्त कर दो ऐसा। सर इसके नीचे का वो जो vx, हाँ बस ये। सर मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाला। हाँ कितना आया बेटा? सर वही आया जैसा आपको आया, मगर मैं दूसरा मेथड यूज करके आया मुझे। तुमने कौन सा मेथड लगा दिया? v = u + at लगाया। हाँ तो एक ही बात है ना। तुमने क्या किया है, तुमने इन चीजों को अलग अलग सॉल्व किया। तुमने इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व किया, राइट, और इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व किया, यहाँ पे किया और उनको ऐड कर दिया। तो एक ही बात है ना, फर्क थोड़ी पड़ता है। सर मुझे वो आपने स्पीड निकाला ना, वो नहीं समझा कैसे। बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हाँ सर वो समझा, पर मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड निकाला तो वो स्पीड होता है। और क्या होता है? स्पीड क्या होता है? नहीं वो पता नहीं था ना बेटा तुम सामने नहीं हो अभी, देखो अभी स्पीड क्या? अबे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी किया था ना, क्या होता है एवरेज स्पीड? किया था। हाँ सर मैंने u के वैल्यू में 3 आई कैप + 4 जे कैप लगाया। हाँ राइट, एग्जैक्टली, एकदम परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इसको ये भी कर सकते हो 3 आई कैप + 4 जे कैप। ये तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है? आई कैप माइनस जे कैप इनटू 5, राइट। तो अल्टीमेटली वही तो बना। हाँ सर मैंने यही। हाँ एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है, नो इशू। यू कैन डू एनी मेथड यू वांट। ठीक है, आई पर्सनली लाइक दिस बिकॉज इसके अंदर सब कुछ इंडिपेंडेंटली चलता है।
क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये जो पैटर्न है ये अच्छा रहता है, इसमें चीजें कहते हैं सॉर्टेड रहती हैं. If you are going to find something along like x axis, then you don't have to care about y axis. Just forget it. Okay. Okay, sir. Okay. One more question. Suppose you are given x coordinate is 3t square and y coordinate is 2t. So you can say पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब मुझे बताओ कुछ. ओके, इनिशियल उसका वो क्या है, पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या मतलब होता है इनिशियल का? t = 0. तो क्या बन जाएगा? 0,0. अब मुझे निकाल के बताओ. फाइंड वेलोसिटी, acceleration, position at t = 4 सेकेंड. t = 4 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पोजीशन सब कुछ फाइंड करना है. Sir, done. सर हो गया. तो देखो, अब हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पर y. उसका x कोऑर्डिनेट लिखा है. x कोऑर्डिनेट आया मेरे पास में 3t स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट कितना आया 2t. ठीक है. ओके, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा dx/dt, तो मतलब क्या होगा? मैंने वही किया सर. वेलोसिटी. मैंने वही किया. हाँ, ऐसे कर. तो द रेट एट विच x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, दैट इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. तो क्या बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 60. यहाँ पे मेरे पास आएगा vy क्या बन जाएगा? dy/dt, द रेट एट विच y इज चेंजिंग, तो 2. अब मैंने किया vx/dt, द रेट एट विच x component of velocity is changing, that is acceleration in x direction. 6 dv/dt 0. क्या बन जाएगा? acceleration in y क्या बन गया? 0. So if I want to write this velocity vector, तो क्या बन जाएगा? 6t I cap plus 2 j cap. If I want to write acceleration, only I component is there, j component is 0. If I want to write position vector, तो 3t square I cap plus 2t j cap. ये उसका x coordinate, ये उसका y coordinate. ठीक है. Yes, sir. अब we have to find at t = 4, तो I will say, तो कितना बन जाएगा? 24 I cap plus 2 j cap. ये तो हमारे पास में उतना ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है. और हमारा पोजीशन क्या बन जाएगा?
48 48 i i cap cap plus 8 j cap 8 j cap 48 i cap plus 8 j cap। कैलकुलस से ज्यादा इजी हो गया सर। हाँ तो फिर हमने कैलकुलस और वेक्टर इसीलिए तो किया था ताकि ये कर ले, नहीं तो तुम थोड़ी ना कर पाते। और हमने हाँ सर 2 महीने फालतू में थोड़ी ना होकर दिमाग किया था यार कि उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं। तो all we are using calculus and vector and we are going to use only बस calculus and vector only, ठीक है। so these are the basics of a 2-dimension motion, ठीक है। coordinates find करना, velocity find करना and everything. in Monday's class we will start projectile motion. Projectile motion is a special case of a 2-dimension motion in which what is homework lecture वो जो है ना 1 to 5 वाला उसको पूरा कर 6 लेना। नहीं है ना सर, 6 में नहीं प्रोजेक्ट अभी मत करो, अभी नहीं हाँ मतलब अभी मत करो 6, ठीक है। तो projectile motion is a special case of a 2-dimension motion in which acceleration is constant। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास में देखो, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आया ना, कांस्टेंट आया और एक ही डायरेक्शन में आया। तो अगर मैं किसी पार्टिकल को वर्टिकली फेंकता हूं, अगर मैं मतलब कि एकदम मैंने वर्टिकली फेंकता हूं तो उसका मोशन कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो जैसा हमने लेक्चर 4 में किया था, अगर एक पार्टिकल को जस्ट वर्टिकली फेंकते हो तो वो एकदम ऊपर जाता है फिर एकदम नीचे आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको किसी और एंगल पे फेंक दूंगा तो जो उसका मोशन होता है दैट मोशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। पैराबोला बनता है। यस, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, कितना टाइम लगता है, कहाँ पे वेलोसिटी का कितना एंगल बनता है, कौन सा पोजीशन कितने बजे आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी सॉल्व इन दैट। सर कल तो डाउट क्लास होगा ना? हाँ कल तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन है जिसके अंदर तुम्हारा लेक्चर 1 to 5 वाला डिस्कशन कर लेना पूरा। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर, सर, थैंक यू बाय सर, सर। बाय सर। बाय बाय।